गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बिहार ITI झंझारपुर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इन बिफोर क्लासेज आई taught you in past continuous and simple past. Now today I am going to teach you past perfect and past perfect continuous tense. Right? Now student, you can see that past perfect tense, past perfect, the action which is completed is called past perfect. What is recognition? Recognition is that चुका था, चुकी थी, चुके थे. You know that चुका था, चुकी थी, चुके थे means the last portion of any sentence which is belong to चुका था, चुकी थी, चुके थे is called past perfect tense. Generally, this sentence based on two structure, right? What do you understand? Generally, based on two structure, right? First, what is the rule of first structure? Subject plus has plus V3 plus other word. In another structure is subject plus V2 plus other word, right? This structure is called past perfect tense. And this structure is called simple past या past indefinite, right? I told before you that generally based on two structure, right? Now, what is the example? How can recognition? Because like the thief had run away before the police came. Means the thief had run away, यानी पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, right? You can see one structure means first structure based on subject plus had plus V3 plus other, and another structure the police can. Here is the police is subject and can is verb 2. You know that in simple past, what is the structure? A structure is that subject plus V2. So, in simple past, this rule follow, right? Next example, the patient had died before the doctor came. You can look here that this sentence which is based on subject plus had plus V3, right? Why? Because the completed portion of any subject which is made on subject plus had plus V plus other, and another structure subject plus V2 plus other, right? Now, I need to say that completed part is used in past perfect. जो हिस्सा कंप्लीट हो चुका है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, आप आसानी से फॉलो कर सकते हैं कि चुका था, चुकी थी एंड चुके थे वाला जो पोर्शन है, द पोर्शन व्हिच इज फिनिश्ड विद चुका था, चुकी थी, चुके थे, उसे आप बनाएंगे पास्ट परफेक्ट के स्ट्रक्चर पर, यानी इस स्ट्रक्चर पर, इस स्ट्रक्चर पर। और जो इनकम्प्लीटेड है यानी दूसरा जो पार्ट है, अदर पार्ट इज यूज्ड ऑन सिंपल पास्ट, राइट? जिसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस V2, राइट? सो ऑन दिस बेसिस वी कैन अंडरस्टैंड एंड मेक जनरली पास्ट परफेक्ट which is used in two structure, subject plus had plus V3 plus other word, and another part is subject plus V2 plus other word. इस हिसाब से हम इस सेंटेंस का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है? ओके, नाउ आई एम गोइंग टू फोकस ऑन another tense. What is past perfect continuous tense? Past perfect continuous tense. This is the last tense of past, right? Now, how can recognition of this sentence?
Dear student, my question is that how can recognition of this sentence? It is a simple method to recognition of this sentence, right? Any action started in past and finished in past. इसका मतलब कोई जो एक्शन है, क्रिया है, पास्ट में ही शुरू हुआ और पास्ट में ही संपन्न हुआ, राइट? पास्ट में ही शुरू हुआ और पास्ट में ही संपन्न हुआ, उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नाम से जानते हैं। उसमें समय इंडिकेट दिया रहता है, उसमें समय दिया रहता है, जैसे 9 बजे से 4 बजे से 5 बजे से 2 घंटे से 4 घंटे से 6 घंटे से, उसमें समय पुट दिया रहता है ना। अब इस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, रूल क्या होता है, क्या स्ट्रक्चर है, कैसे बनाया जाता है, यह आपके सामने है, आप देख सकते हैं। एट फर्स्ट यूज सब्जेक्ट, पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हैड का प्रयोग किया जाता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीइंग प्लस बिफोर मैंने कई बार बताया आपसे कि सब्जेक्ट किसी भी वर्ब में एनजी लगाने से वो बिफोर बन जाता है, राइट? सो बिफोर लगाने के बाद हम सिंस अथवा और फॉर प्लस अदर, ये स्ट्रक्चर है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, राइट? अब आपके मन में सवाल आया, देयर इज अ क्वेश्चन ऑन योर माइंड दैट since and for, when you used since and when you used for, मतलब आप since का प्रयोग कब करेंगे और for का प्रयोग कब करेंगे। My dear student, you know that point of time, जब point of time है, यानी जब point of time है तब आप since का प्रयोग करेंगे, जब period of time है तब आप for का प्रयोग करेंगे। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब मीन्स सर्टेन टाइम, पॉइंट जैसे 9 बजे से एकदम सर्टेन टाइम, पीरियड ऑफ टाइम का मीन्स अवधि, उसमें सर्टेनिटी नहीं आती है, वह एक लगभग के लिए आता है, नॉट एग्जैक्ट, राइट? लगभग, उसमें आगे पीछे हो सकता है। हम एक परिधि, एक पीरियड बोल कर कहते 1 घंटा से पढ़ाई कर रहे हैं, 2 घंटा से पढ़ाई कर रहे हैं, ये सब चीज आता है। इसलिए पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगाया जाता है और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है, राइट? एज फॉर एग्जांपल, बिफोर you had been reading English since 9 o'clock. My dear students, you look very careful here that you had been, according to rule we can apply, right? According to rule, you had been reading English since. Why since? Because point of time, 9 is a point of time, so I apply, right? You had been reading English since 9 o'clock. आप 9 बजे से इंग्लिश पढ़ते आ रहे थे, 9 बजे से शुरू किए, आ रहे थे, राइट? 9 बजे पहले शुरू हुआ, बहुत पहले, और अभी भी जारी था, आ रहे थे। He had been playing cricket for 2 hours. दूसरे वाक्य में he had been playing cricket for 2 hours, यानी आप 2 घंटे से क्रिकेट खेलते हुए आ रहे थे। क्रिकेट खेलने का समय 2 घंटा पहले हुआ और हाल फिलहाल तक चला, यानी कहने का मतलब यह था कि कोई भी क्रिया पास्ट में ही शुरू होता है और पास्ट में ही संपन्न होता है, उसमें टाइम दिया रहता है। टाइम क्या रहता है? 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, जिसके अनुसार सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है। इसका हम निगेटिव भी बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं। यदि निगेटिव बनाना चाहते हैं तो यू हैड नॉट, बीच में नॉट लग जाएगा। इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हैं तो हैड को पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर बीइंग प्लस प्लेइंग, ऐसे करके हम इतना ध्यान रखना है कि यदि इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्वेश्चन मार्क अवश्य लगना चाहिए। इस क्लास के साथ मैं पास्ट टेंस को खत्म कर दिया।
इससे पहले हमने प्रेजेंट टेंस के बताया। अब नेक्स्ट क्लास में हम फ्यूचर के बारे में फोकस करेंगे। थैंक यू सो मच।